So in part first of our 12th chapter soil, we have studied formation of soil, what is soil profile, how does the soil form, weathering of rocks and importance of soil. So in part second we will study about soil erosion, how can we conserve our soil. So let's start. Okay, soil erosion, topsoil और A horizon is the most fertile layer of the soil. Soil की 3 layers हमने डिस्कस करी थी. First one is top layer, second one is middle subsoil and the third one is bedrock, A, B and C horizon. So the topsoil is the most fertile layer of the soil. Topsoil is the most fertile layer of the soil. It has humus which is necessary for the growth of the plants. क्यों? क्योंकि topsoil में ही क्या होता है? Humus होता है which is necessary for the growth of the plants because humus contains minerals. And sometimes this topsoil is carried away by wind, water or other elements. लेकिन कभी कभी क्या होता है, topsoil जो होता है is carried away from one place, मतलब carried away हो जाता है with the help by wind, water और other elements and this process is called soil erosion. Soil erosion क्या होता है? देखो topsoil जो होता है काफ़ी fertile soil होती है, humus contain करता है, plants के लिए अच्छा होता है क्योंकि plants की सारी requirements कौन fulfill करती है? topsoil. बट कभी कभी topsoil is carried away by wind, by water. अगर हवा बहुत तेज़ चली, हवा विंड बहुत ज़्यादा ब्लो कर रही है, तो फिर जब हवा ज़्यादा तेज चली तो क्या हो गया, सॉइल की टॉप लेयर क्या होती है, हवा के साथ ही वैनिश हो जाती है, हवा के साथ ही उड़ जाती है. वाटर में क्या होता है, अगर कहीं जगह बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है तो क्या करता है, पानी क्या करता है, सॉइल के टॉप सॉइल को अपने साथ ही वॉश्ड अवे कर लेता है, अपने साथ ही टॉप वॉश्ड अवे कर लेता है, वैनिश हो जाएगी. इट मीन्स टॉप लेयर चली जाती है पानी या विंड के साथ. तो ये क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन. In places where there is a lot of soil erosion, the fertility of the soil is greatly reduced. अब soil erosion में क्या हुआ था, soil की top layer ही vanished हो गई, soil की top layer ही carried away हो गई. जब top layer हो गई तो fertility भी soil की lose हो जाएगी. अब क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा fertility कहाँ होती है, soil की top soil में. So that there is a lot of soil erosion where the fertility of the soil is greatly reduced. The crop yield reduces and farmers suffer. crop की yield भी reduce होगी, क्यों? क्योंकि जब fertility अच्छी होती है तो ही production भी अच्छा होगा. So the crop yield also reduces and farmers suffer. तो इसका basically suffer कौन करता है, farmer करता है. क्यों? क्योंकि फिर जब production अच्छा नहीं होता तो या production अच्छा नहीं होता तो किसी भी चीज़ को farmer sell करेगा तो उसकी price भी अच्छी नहीं आती. So farmers suffer. The Food and Agriculture Organization, FAO. What is the full form of FAO? The Food and Agriculture Organization, a wing of the United Nations, estimates that the global loss of productive land due to soil erosion is 5 to 7 million hectares per year. तो इन्होंने क्या एस्टिमेट्स बताया था, FAO ने क्या एस्टिमेट बताया, दैट द ग्लोबल लॉस ऑफ प्रोडक्टिव लैंड जो बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकता है, तो ग्लोबल लॉस, वर्ल्ड वाइड लॉस कितना होता है सॉइल इरोजन की वजह से, अराउंड 5 to 7 मिलियन हेक्टेयर्स का लॉस होता है पर ईयर. The factors that are responsible for soil erosion are known as the agents of erosion. वो factors जो soil erosion के लिए responsible होते हैं, like wind, water, तो these all are the agents of erosion. They are discussed here. First is water erosion. देखो water erosion क्या होता है, erosion occurred by water. Wind erosion occurred by wind. So water erosion या factors that are responsible for soil erosion, first is water. Running water causes the maximum amount of soil erosion. Running water, बहता हुआ पानी, running water है, river है, it causes the maximum amount of soil erosion. When rain falls, जब बारिश होती है, running water carries away the topsoil with it. बारिश हुई तो रनिंग वाटर ने क्या किया, बारिश के पानी ने क्या किया, सॉइल को भी कैरी अवे कर लिया. द रनिंग वाटर कैरीज अवे द टॉप सॉइल विद इट ड्यू टू रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल. जब फर्टाइल टॉप सॉइल का ही रिमूवल हो गया, वाटर के साथ कैरीड अवे कर गई टॉप सॉइल, द लैंड बिकम्स अनसूटेबल फॉर फार्मिंग. लैंड क्या हो जाता है, फार्मिंग के लिए अनसूटेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. The problem of soil erosion becomes huge in hilly areas as the flow of water is faster over the incline. Soil erosion की problem सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, hilly areas में होता है. Why? Because the flow of water is faster. वहाँ पे water का flow faster होता है. If this occur continuously, the river can change its course. अगर ये continuously occur होता है, the river can change its course. This causes destruction and damage to both property and land. ये क्या करता है इरोजन, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू द बोथ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ. हैवी रेन्स कॉज फ्लड्स. देखो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, फ्लड्स की कंडीशन आ जाती है. एंड फ्लड्स टुगेदर विद हैवी रेन्स कैन इरोड द सॉइल वेरी फास्ट. जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स है, हैवी रेन्स हो रही हैं तो इट कैन ईजिली इरोड द सॉइल. इट मीन्स वेरी फास्टली सॉइल इरोड होती है, सॉइल वेरी फास्टली कैरिड अवे कर जाती है, विच रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ द रिमेनिंग सॉइल.
सेकेंड फैक्टर इज विंड इन डेजर्ट एंड ओपन लैंड्स। डेजर्ट और ओपन लैंड्स में क्या होता है, विंड कॉजेज अ लॉट ऑफ सॉइल इरोजन, विंड कॉजेज अ लॉट ऑफ सॉइल इरोजन। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे द ह्यूमस रिच टॉप सॉइल, जब बहुत ज्यादा विंड ब्लो करती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करते हैं तो क्या करते हैं, इट ब्लो अवे द ह्यूमस रिच टॉप सॉइल, टॉप सॉइल को वही ब्लो अवे कर लेते हैं अलॉन्ग विद द विंड। अब जब टॉप सॉइल ही ब्लो अवे हो गए तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे सॉइल में प्रेजेंट, फर्टाइल नहीं होगी सॉइल। When this fertile layer of soil is gone, new plants cannot grow well in the depleted soil. जब fertile layer of soil ही चली गई तो new plants grow नहीं कर पाते soil में। If the erosion blows away the deeper layer of the soil too, then the roots of the plant are exposed and plants die. अगर erosion बहुत ज़्यादा है और या strong wind बहुत ज़्यादा strong है, सो इट ब्लोज अवे द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल, तो ये सॉइल की डीपर लेयर को भी ब्लो अप कर जाती है, लाइक टॉप सॉइल ही नहीं, सब सॉइल या बी लेयर, मिडल लेयर को भी क्या करते हैं, ये ब्लो अवे कर लेते हैं। देन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड एंड प्लांट्स डाई, तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं टू द सन एंड दे प्लांट्स डाई। Some human activities is also a factor which is responsible for erosion. You know that the roots of plants hold the soil particles together. Of course, हमें पता है कि soil plant की जो roots होती है वो ही soil particles को hold करके रखती है togetherly. We all know that the roots of the plant hold the soil particles together. Soil के particles को togetherly hold करके रखते हैं. Soil erosion increases in the absence of plants. प्लांट्स की एब्सेंस में सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू द रिडक्शन ऑफ प्लांट कवर। सम ऑफ द एक्टिविटीज आर, काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करते हैं, इरोजन को कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर लीड्स टू अ सिचुएशन कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर, काफ़ी नंबर्स में ट्रीज का कट डाउन कर देना, ये होता है डिफॉरेस्टेशन। एंड अफॉरेस्टेशन क्या होता है, अफॉरेस्टेशन मीन ग्रोइंग ऑफ ट्रीज और प्लांटिंग मोर ट्रीज इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, जहाँ कट हो चुके हैं ट्रीज वहीं पे नए प्लांट्स को ग्रो करना, या जहाँ पे ट्रीज कम है वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करना इज अफॉरेस्टेशन। एंड डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर लीड्स टू अ सिचुएशन कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इट इंक्रीजेस सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, सॉइल इरोजन इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे, रूट्स प्लांट्स की सॉइल को पार्टिकल्स को बाइंड अप नहीं करके रखेगी, तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। When trees are cut, the soil becomes loose. Soil loose हो जाएगी, और लूज हो जाएगी तो वो easily vanished हो सकती है, easily carried away हो सकती है by wind or water. It is then easily carried away by wind and water. Overgrazing by cattle removes the plant cover from the soil. As a result, soil erosion increases. देखो, overgrazing by cattle, cattle क्या करती हैं, लाइक गॉड, काउ, ये क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं फील्ड्स में या प्लांट सॉइल को। सो ओवरग्रेजिंग बाय कैटल रिमूव्स द प्लांट कवर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट कवर को रिमूव कर देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। प्लोइंग ऑफ हिल्स फॉर कल्टीवेशन ऑल्सो लूजन्स द सॉइल। हिल्स में प्लोइंग करना कल्टीवेशन के लिए, ये भी क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को लूज करते हैं। एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इरोजन बाय विंड, और फिर क्या होता है, विंड से रिस्क ऑफ इरोजन को इंक्रीज करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वी हैव टू कंजर्व आवर सॉइल, क्योंकि सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो इट्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। सॉइल फॉर्मेशन एक्सट्रीमली स्लो होता है क्योंकि रॉक्स को ब्रेक डाउन होने में ही 1000 और मोर देन 1000 ईयर्स लग जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच थिक ऑफ सॉइल। इनफैक्ट सॉइल का एक इंच फॉर्म होने में भी 1000 या 100 ईयर्स लगते हैं। सो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज वेरी स्लो। Since it is difficult to replenish soil, we must make all possible efforts to protect it and stop it from being eroded away. इसीलिए क्या ये हमें नेसेसरी है, क्योंकि सॉइल फॉर्म बहुत सालों में होती है, बहुत ईयर्स में होती है। That's why we have to protect our soil and stop the erosion and prevent the measures to for soil erosion. The protection of soil against erosion is called soil conservation. जो भी हम protection या measures को follow करते हैं, the protection of soil against erosion is called soil conservation. Soil can be conserved through several methods. Soil को काफ़ी सारे methods से आप conserve कर सकते हैं. For example, first by planting more trees. ज़्यादा से ज़्यादा trees को plant करना, ज़्यादा से ज़्यादा trees को grow करना. Plants and trees reduce soil erosion. Plants और trees क्या करते हैं, soil erosion को reduce करते हैं. Their roots prevent water and wind from blowing away the soil. Plants की roots क्या करती है, soil particles को tightly hold करके रखती है. That's why it prevent water and wind from blowing away the soil.
सो प्लांटिंग मोर ट्रीज इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, इसीलिए ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. अफॉरेस्टेशन इज बेनिफिशियल बोथ इन हिल्स प्लेन्स एंड इन हिली एरियाज. अफॉरेस्टेशन प्लेन्स और हिली एरियाज दोनों जगह ही बेनिफिशियल है. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी हाउ रूट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. अवॉइड लीविंग द सॉइल बेयर. अवॉइड लीविंग द सॉइल बेयर मीन हमेशा सॉइल पे कुछ ना कुछ ग्रो करके रखना चाहिए, सॉइल को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए. विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल फ्रॉम बेयर फील्ड्स. ऑफकोर्स बेयर फील्ड्स होगी, कोई भी क्रॉप नहीं होगी, कोई भी प्लांट नहीं होगा, तो विंड क्या करेगा, इट कैरिड अवे द टॉप सॉइल, इट कैरिड अवे द फर्टाइल सॉइल. सो फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट बेयर, इसीलिए फील्ड्स को ऐसे ही नहीं रहने देना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रो करते रहना चाहिए. बिटवीन द क्रॉपिंग सीजन्स दे कैन बी कवर्ड विद ग्रासेस. अगर क्रॉपिंग सीजन है तो बीच में हम उसे ग्रासेस से भी कवर कर सकते हैं. The roots of these plants would hold the soil particles together and prevent the soil from being blown away. तो plants की roots क्या करते हैं, soil को soil particles को togetherly hold करके रखते हैं and prevent the soil from being eroded or from being blown away. Terrace farming is done in the hills. कहाँ करी जाती है terrace farming? Hills में करी जाती है. Terrace farming is done like this, hills में करी जाती है. The slope is cut into steps. Slope किस में कट करा जाता है? Into steps. दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. देखो जब स्लोप स्टेप्स में कट किए जाते हैं तो इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर. अगर प्लेन सर्फेस होगा तो फ्लोइंग वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी, बट अगर हमने उसको स्टेप्स में कट कर दिया स्लोप को तो इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट इज ऑल्सो लेस एज द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप इज डिपोजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप. देखो सॉइल का अमाउंट भी जो है वो कम हो जाएगा. लॉस्ट सॉइल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा. वाई, अगर यहाँ से सॉइल इरोड है तो हो सकता है नेक्स्ट स्टॉप में जाके या नेक्स्ट स्टेप में जाके वही सॉइल डिपॉजिटेड हो जाए. सो सॉइल लॉस्ट इज ऑल्सो लेस इन दिस टेरेस फार्मिंग. सो टेरेस फार्मिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. टेरेस फार्मिंग हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. क्रॉप रोटेशन, growing different crops alternatively helps to maintain the nutrients of the soil. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, रेगुलरली एक ही क्रॉप को ग्रो नहीं करना चाहिए. एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं अगर आप सेम प्लांट पे सेम फील्ड पे तो क्या होता है, क्रॉप सॉइल इरोजन के चांसेस, सॉइल की फर्टिलिटी लेस हो जाती है. क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, लाइक हमें अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए. सो ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली हेल्प्स टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल. इससे क्रॉप रोटेशन से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं. फार्मर कैन ग्रो क्रॉप्स सच एज ग्राउंडनट विद अदर क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन. फार्मर ग्राउंडनट ग्रो कर सकते हैं अदर क्रॉप्स के साथ इन डिफरेंट सीजन. दिस इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसेस इरोजन. ये क्या करता है क्रॉप रोटेशन, ऑल्सो इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. एम्बैंकमेंट्स, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलंग रिवर बैंक्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. क्या करना चाहिए, एम्बैंकमेंट्स को बिल्ड करना चाहिए नियर रिवर, अलंग रिवर बैंक्स के आसपास. क्यों, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द रिवर वाटर इज अनेबल टू फ्लड द नियर बाय फील्ड्स. सो फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि रिवर वाटर क्या करे, सॉइल पे फील्ड्स पे ना आए. सो वी फॉर्म द एम्बैंकमेंट. विंड ब्रेक्स, rows of tall dense trees can be grown along the edges of the agricultural field. एजेस जैसे हमने एम्बैंकमेंट का फॉर्मेशन किया था ऑन द एजेस ऑफ द फील्ड, सिमिलरली रोज ऑफ टॉल डेंस ट्रीज को ग्रो करना चाहिए अलंग द एजेस ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स के कॉर्नर्स में. वाई, दे एक्ट एज ब्रेक्स टू द विंड. ये एक्ट एज अ ब्रेक टू द विंड. विंड अगर स्ट्रांग ब्लो कर रही है बट उसको क्या ये एक्ट करते हैं कि विंड की स्पीड को रिड्यूस करने में. एंड प्रिवेंट्स द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. जब विंड की स्पीड रिड्यूस हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड जो ब्लो कर रही थी उसकी स्पीड रिड्यूस हुई, so it means it also prevents the soil erosion. The land is thus safe from the erosion due to wind. Wind की वजह से फिर क्या होता है, land is safe from the erosion. Here we have completed our chapter number 12 which is soil. Thank you.